آج ہم اس خاص اتوار کے موقع پر جب ہم خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد اس کا اپنے شاگردوں پر ظاہر ہونے کا واقعہ ہم نے سنا، ایک بہت ہی اہم اقتباس، ایک ایسا اقتباس جس میں ہمیں حقیقی ملاقات کے حوالے سے خبر ملتی ہے، نوید ملتی ہے۔ خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جھوٹا ہے اور اب وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے، اور اس ظہور میں بہت ہی واضح طریقے سے مقدس لوکا نے کچھ ایسی سٹیجز رکھی ہیں جن کو نوٹ کرنا، جن کو پر غور و خوض کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو کر مختلف اوقات میں اپنے شاگردوں کو نظر آئے، اور ان میں مختلف واقعات کو دیکھتے ہیں۔ فوراً مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جب وہ قبر پر آئے تو انہوں نے فرشتوں کے ذریعے یہ خبر سنی۔ کچھ حوالہ جات میں خود خدا یسوع مسیح ان سے ملاقات کرتا ہے، خصوصی طور پر یوحنا کے انجیل میں مریم مجدلی پر ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ایماؤس کے شاگردوں پر، جو کہ ایماؤس کے رستے کو سفر کر رہے تھے، اور ان سے خدا ملاقات کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے پچھلے اتوار سنا کہ کس طرح خدا یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوتے ہیں، اور توما خدا یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کے زخموں کے نشانوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی انگلی ڈالنا چاہتا ہے، اور کہتا ہے میں جب تک اس کی پسلی میں ہاتھ نہ ڈالوں ہرگز یقین نہ کروں گا۔ اور خدا یسوع مسیح پر پھر توما جب موجود تھے تو ظاہر ہوتے ہیں۔ اس طرح کے نئے عہد نامے کی اناجیل میں خدا یسوع مسیح کے ظہور سے مختلف اناجیل بھری پڑی ہیں، لیکن آج کا جو خدا یسوع مسیح کا ظہور ہے اس لوکا کے انجیل کے 24ویں باب میں، یہ اپنی ہی نوعیت کا ہے۔ اور لوکا اپنے رسولوں کے اعمال کی کتاب کے 10ویں باب میں لکھتا ہے کہ اور اس کے جی اٹھنے کے بعد ہم نے اس کے ساتھ کھایا پیا۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم آج اسپیشلی اس پوری خدا یسوع مسیح کی ملاقات کے حوالے سے بات چیت کریں جو اس نے اپنے شاگردوں سے کی۔ یہ ایک ایسی باہمی ملاقات ہے جو آہستہ آہستہ گہرائی میں کرتی ہے، اور کس طرح سے ہوتی ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے باہمی ملاقات کرتے، انٹرپرسنل ملاقات کرتے، سرسری ملاقات نہیں بلکہ انٹرپرسنل، جس میں دونوں انوالو ہیں، دونوں ایک دوسرے کی قربت میں آتے ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح لکھا ہے کہ وہ کٹھے تھے اور اماؤس کے شاگرد واپس آئے، اور وہ بتا رہے تھے، جیسے ہی وہ بتا رہے تھے خدا یسوع مسیح ان کے بیچ میں آ کے کھڑا ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوف زدہ ہے اور گھبرا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا یسوع مسیح کی جو ملاقات ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اس میں جو رد عمل شاگردوں کی طرف سے آیا ہے، اس میں خدا یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی، تو غالباً میں سمجھا کہ کوئی روح ہے، کہ خدا یسوع مسیح کوئی روح ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوف کسی اور وجہ سے بھی ہے۔ اگر ہم ہیومن ریلیشن شپ کی بات کریں، انسانی تعلقات کی بات کریں، تو پھر ہمیں بات کی بڑی سمجھ آتی ہے کہ کچھ ہم خوف زدہ ہیں، کچھ ہچکچا رہے ہیں، اور پھر ہم امبیرس فیل کرتے ہیں، پھر شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم اس سچویشن کو دیکھیں تو خدا چند دن پہلے مصلوب ہوئے، اور چند دن پہلے مصلوب ہونے کا مطلب ہے کہ چند دن ہی ہوئے ہیں
कि खुदावंद यीशु मसीह को उसके शागिर्दों ने छोड़ दिया। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने जब वो गतसमनी के बाग में पकड़वाने वाले ने उसको पकड़वाया तो दूसरे जितने भी शागिर्द थे वो तितर-बितर हो गए। एक तो इन्वॉल्व था जिसने उसको पकड़वाया और फिर दूसरे जो कि गायब हो गए, सीन से ही गायब हो गए। एक ने तो वाज़ेह तौर पर उसका इनकार कर दिया, 3 दफा इनकार किया। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर एक उस्ताद, एक रब्बी, एक उनका दोस्त, उनसे मोहब्बत करने वाला जब किसी मुश्किल में गिरा है तो वो दूसरे सारे छोड़ के भाग आए, जो कि उसके होते हुए इस चीज का इकरार करते रहे, मैं तो तेरे साथ मरने तक के लिए तैयार। तो देखिए इंसानी रिलेशनशिप्स में भी ऐसा ही होता है, इंसानी ताल्लुकात में भी ऐसा। जान तक हाजिर, जान देना से विचार। तो जैसे ही कुछ छोटी सी मुश्किल आती है तो पता चलता है कि भी कहाँ गया। तो इसी तरह खुदा यीशु मसीह के शागिर्द भी उसे ये कह रहे हैं कि मैं तो जान देने तक तेरे साथ तैयार हूँ। तो खुदा यीशु मसीह से कह रहा तुझे आज ही मेरा इनकार किया। तो एक तरफ है खुदा यीशु मसीह जो कि उनके दरमियान आके खड़े होते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह की जो अप्रोच है, उनसे मुलाकात करने का जो तरीका है, उसमें कोई हमें गिला शिकवा, तानाजनी नजर नहीं आता। जाहिर सी बात है, अगर इंसान से मुलाकात कर रहा है और खुसूसी तौर पर ऐसे वाकयात के बाद मुलाकात कर रहा हो जहाँ पर धोखा भी है, जहाँ पर छोड़ दिया गया है, साथ नहीं दिया गया, तो वहाँ पर दिल में खलश आती है। कोई भी अगर आपके साथ हो, आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन या आपका कोई दोस्त है, जब आप किसी भी छोटी फाइनेंशियल मुश्किल में फंस गए हैं तो वो कहे कि बिल्कुल मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हूँ, या गायब हो जाए। तो फिर उसके बाद जब आप उस फाइनेंशियल मुश्किल से निकल आएंगे या किसी और मुश्किल में पड़ेंगे, उससे जब आप निकल आएंगे तो फिर जब आपका आमना सामना होगा तो फिर वो बात जो है उसमें हिचकिचाहट और थोड़ी सी परेशानी और खौफ तो होगा। तो मैं समझता हूँ कि खुदा यीशु मसीह की आज की जो अपने शागिर्दों के साथ मुलाकात है, उसमें शागिर्दों की तरफ से ये रिजर्वेशन, ये तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद है, खौफ के, डर के और शर्मिंदगी के। लेकिन खुदा यीशु मसीह जो कि मुलाकात का बादशाह है, वो अपने शागिर्दों से कहता है खौफ मत खाओ, उनसे बातचीत करता है, वर्बल कम्युनिकेशन करता है, बातचीत होती है। और ये हमारी मुलाकातें भी इसी तरह होती है, तो बातचीत होती है, सलाम दुआ होती है, सलाम किया, बड़ा होकर, उस्ताद होकर उनके दरमियान आबीद पे खड़ा हुआ, उनसे कहा तुम्हें सलाम। फिर उसके बाद हमारी भी अपनी इंसानी मुलाकात को भी अगर आप देखें तो उसमें जब हम किसी से मिलते हैं तो फिर ज्यादा उसको इंटरपर्सनल बाहमी मुलाकात तब बनती है जब हम एक दूसरे के साथ या तो हाथ मिलाते हैं, फिजिकल टच, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, चूमते हैं, इजहार करते हैं मोहब्बत का। तो खुदा यीशु मसीह भी उनको फिर बातचीत के, सलाम दुआ के बाद उनको आगे लेकर, वो कहता है कि मुझे छू कर देखो, और उसने उसको अपने हाथ और पांव उनको दिखाए, कहा कि मुझे छू कर देखो कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी इस मुलाकात में मैं बिल्कुल तुम्हारे पास खड़ा हूँ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह इस मुलाकात के बाद जब उससे अगली स्टेज जो होती है वो हमारी भी कि जब हम बैठ के खाना खाते हैं, आप किसी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, ठीक है, बातचीत होती है, सलाम दुआ होती है, फिर उसके बाद हाथ मिलाया जाता है, फिजिकल टच मौजूद है, और फिर उसके बाद हम खाना खाते हैं, जो कि मोहब्बत का
रफाकत का बहुत बड़ा इजहार है ऐसे। लेकिन अगर आप किसी के घर सूखी चाय भी आ रहे तो ना जान छुड़ाई, लेकिन अगर आपके लिए कोई ज़ियाफ़त तैयार कर रहा है, किसी ने आपके लिए ज़ियाफ़त, इसका मतलब वो आपके साथ ज़्यादा मोहब्बत इज़हार कर रहा है कि हम मिल के बैठ के खाएंगे। जैसे आप अपने किसी भी रिलेटिव के घर जाते हैं, किसी बहन, मैं अपनी बहन के घर जाता हूँ, वो बड़ी खुश होती है, खाना बनाती है, मुझसे पूछती है क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो वो चाहते हैं कि हम मिलकर बैठ कर खाना खाएं, मोहब्बत का इजहार। तो खुदा ने हमसे कहा क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है, और फिर उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का एक कतला दिया और उसने उनके सामने खाया। तो उस मुलाकात को खुदा में यीशु मसीह आगे लेकर के जाता है, गहराई में लेकर जाता है, इंटरपर्सनल बनाता है, बाहमी बनाता है। और फिर उसके बाद इंसानी रोटी तोड़ने के साथ साथ खुदा के साथ कलाम की रोटी, और लिखा है कि उसने फिर उनके जहन खोले, साइफ अंबिया, मूसा की तौरात और मज़ामीर के हवाले से उनसे बातचीत की, और उसके बाद ये हकीकी मुलाकात अमल में आती है। तो आज हम भी जब इस गिरजाघर में आते हैं इबादत के लिए, असल में तो हमें ये सोचना चाहिए, मैं आपको ये नसीहत करूँगा, ये ख्याल करना चाहिए कि हम क्यों जा रहे हैं, हम यीशु से मुलाकात करें। और आप देखेंगे कि ये जो यीशु मसीह का की ज़ियाफ़त है, ये हकीकी उसके साथ मुलाकात का नमूना है, जिसमें खुदावन के साथ बातचीत भी होती है, हम उसको छूते भी हैं, जब उसका बदन हाथ में लेते हैं, मुझे छू कर देखो, फिर हम उसके साथ मिलकर खाते पीते हैं, और फिर वो हमारे लिए कलाम के भेदों को भी खोलता है। तो असल में यूखरिस्ती इबादत भी एक खुदा यीशु मसीह के साथ गहरी मुलाकात है। इसलिए जब हम सोचें, हम अपने घर से निकले या सोच रखते हैं कि हमने गिरजाघर जाना है, तो हम ये सोच रखें कि हमने खुदा यीशु मसीह से मुलाकात करनी, और वो मुलाकात बाहमी होनी चाहिए, जिसमें बातचीत हो। कैसा लगेगा अगर आप किसी के घर जाते हैं और दरवाजा खोल खामोशी से जाके बैठ जाते हैं, ना कोई सलाम, ना कोई दुआ, ना कोई हाल, ना कोई चाह, ऐसा ना कोई चाह, ना पानी, ना रोटी है। ऐसी मुलाकात कैसी मुलाकात है? अगर आपके घर में कोई आकर वैसे ही आके वो आके बैठ जाते हैं, बस। तो हमारी जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ यूखरिस्ती इबादत की मुलाकात है, उसमें ये बाहमी है, इंटरपर्सनल है, जिसमें हमें खुदावंद से बातचीत करनी है, और खुदावंद के सामने जो जिस तरह शागिर्द खौफजदा थे, घबरा रहे थे, हम भी हैं। जब आते हैं उसके हजूर झुकते हैं अपने गुनाहों के लिए, अपनी खताओं के लिए, जब हमने उसके साथ बेवफाई की है, और फिर हम उससे मुआफ़ी तलब करते हैं, क्या खुदा हमें माफ़ कर दे ताकि हम तेरे साथ अच्छी मुलाकात कर सकें। और यही यूहन्ना के खत में आज की दूसरी तिलावत में लिखा है कि ताकि तुम गुनाह ना करो, और अगर किसी से गुनाह सरजद हो जाए तो आपके पास हमारा वकील है। तो खुदा हमारे गुनाहों को भी माफ करके हमें अपने करीब लाता है। तो आइए हम आज की इस इबादत में ये याद रखें कि हम खुदा से मुलाकात करें, और इस मुलाकात की जितनी ज़्यादा गहराई होगी उतनी ज़्यादा हम खुदावन में मजबूत भी होंगे। लेकिन इस मुलाकात के बाद खुदावन ने अपने शागिर्दों को एक और अहम काम दिया, और ये कहा कि तुम ही इन बातों के गवाह हो। और हमारी मुलाकात खुदावन के साथ हमेशा हमें ये दावत भी देती है, अर्ज करती है, उकसाती है कि हम इस मुलाकात के हवाले से दूसरों को। तो आज से मैं ये कहूँगा, बजाय इसके किसी चर्च के ऐसा बस यीशु ने मुलाकात करके, और ये जब हम इस गिरजा घर से निकलें भी तो हम ये सोचें कि क्या वाकई मेरी यीशु से मुलाकात